ओके तो आज हम मई जून 2021 का पेपर स्टार्ट करने लगे हैं। Let's start with the question number 1. A group 2 metal combine with bromine to form crystalline solid MbR2. Okay, so it could be any metal from group 2, whether magnesium, calcium, strontium, barium. Excess aqueous silver nitrate is added to a solution of MbR2 metal bromide and a precipitate forms. The mixture is filtered, the precipitate is dried, and mass of precipitate is recorded. Okay. State the formula and the color of the precipitate. So if we are adding silver nitrate and we already know that there are bromide ions, then what will be the color of precipitate? Yes, who can tell me? Cream. Cream precipitate. Okay, very good. So the color of the precipitate is cream. And what is the formula of the compound that is formed? The name is silver bromide, and silver have a +1 charge and a bromide have a -1 charge, so the formula will be AgBr only. Is this clear to everyone? Yes. Okay. Then complete the equation to represent the reaction of MbR2 and silver nitrate. Okay. So हम मेटल को एज अ मेटल ही यूज करते हुए आगे इक्वेशन को प्रोसीड करेंगे, और हमें पता है कि क्रीम प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो रहे हैं, तो इट मींस एक तो आपके पास सिल्वर ब्रोमाइड फॉर्म होगा, दूसरा आपके पास क्या फॉर्म होगा, उस मेटल का नाइट्रेट फॉर्म होगा, और मेटल ने बताया कि ग्रुप 2 का है तो उस पे 2+ चार्ज है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अ नाइट्रेट आयन इट हैव अ -1 चार्ज। तो जो आप मेटल नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखेंगे वो आप इस तरह लिखेंगे, ठीक है। अब अगर बैलेंसिंग की बात करें तो हमें यहाँ पे 2 प्लेस करना पड़ेगा इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, और यहाँ पे 2 प्लेस करना पड़ेगा। तो हमारी इक्वेशन बैलेंस है, दोनों तरफ 2 सिल्वर आयंस हैं, 2 नाइट्रेट आयंस हैं, 2 ब्रोमाइड आयंस हैं, और 1 आयन है M2 पॉजिटिव का। जी ये क्लियर है सबको? Yes. Okay. Then a 0.25 gram sample of pure MbR2 contains 8.415 exponent -4 mole MbR2. So here we have a mass and here we have moles. Calculate the relative formula mass Mr of MbR2. Use this to identify M. Okay.
So they have given us the mass and moles of the same compound MbR2 और हमें पता है हमारे पास moles का formula क्या होता है, moles is equals to mass upon mr. So if we make the mr as a subject, it will be mass upon moles. So the mass is 0.250 and divided by the moles, that is 8.415 exponent minus 4. So can anybody tell me the answer? जी कोई कैलकुलेट करके आंसर बता दे. 297.1. Okay, so 297.1 is our MR, and then they are asking about the to identify M. सर आपको मेरी आवाज अब आपकी आवाज आई है अब आई मोहम्मद सर कब जी. से बोल रहा हूँ मैं. अच्छा, तो 297 MR आ गया हमारे पास, राइट? और हमसे उन्होंने आइडेंटिफाई करने का बोला है मेटल को. तो एक मिनट, here we have a periodic table और ब्रोमीन का AR हमें क्या प्रोवाइडेड है, 79.9. सो हम ये कह सकते हैं मेटल M का मास X है प्लस 2 times 79.9 is equals to 297.1. So X is equals to 297.1 minus 2 times 79.9. कोई मुझे आंसर बताएगा क्या आ रहा है? सर 137.3. 137.3. तो ये हमें AR मिल गया मेटल M का, राइट? दैट इज अ AR ऑफ मेटल M. तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें, और उन्होंने हमें ऑलरेडी बता दिया था ग्रुप 2, तो देखें आपके सामने है बेरियम का आ रहा है 137.3. सो द मेटल M इज बेरियम Ba. जी क्लियर है सबको? यस सर. जी सर. ओके. A sample of MbR2 is dissolved in water. Chlorine gas is then bubbled into the solution. Describe the observation for this reaction. तो अगर आप periodic table को observe करें, सर ऑरेंज सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा, कलरलेस टू तो ऑरेंज. क्लोरीन ऊपर है, ब्रोमीन नीचे है, आयोडीन उससे नीचे है. सो अगर हम पोजीशन देखें तो फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन. और बीइंग एन एलिमेंट, जब हम इनकी बात करते हैं और जब हम डाउन द ग्रुप मूव होते हैं, तो बीइंग एन एलिमेंट दे ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. So when we move from fluorine to iodine down the group, their oxidizing agent strength decreases, which means chlorine is stronger
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन ब्रोमीन। ये बात क्लियर है सबको? Yes. जी sir. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्लोरीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ब्रोमीन से, तो देखें एक्वस सॉल्यूशन बना था, तो उस एक्वस सॉल्यूशन में ब्रोमाइड आयंस एग्जिस्ट कर रहे होंगे, और जब हम क्लोरीन गैस को उसमें बबल करेंगे तो क्लोरीन ब्रोमाइड आयन को ऑक्सीडाइज करके ब्रोमीन में कन्वर्ट कर देगा एंड इटसेल्फ बिकम अ क्लोराइड। ठीक है, तो अगर ब्रोमीन फॉर्म हो रहा है तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ब्राउन सॉल्यूशन हो जाएगा या ऑरेंज सॉल्यूशन हो जाएगा? तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? कलरलेस टू ब्राउन और ऑरेंज। ये क्लियर है सबको? Yes sir. जी सर। जी sir. ओके, ओके, काइंडली मुझे जरा 2 मिनट दे दें आप लोग। ओके, तो कलरलेस टू ब्राउन हमारी ऑब्जर्वेशन होगी क्योंकि ब्रोमीन फॉर्म हो रहा है और ब्रोमीन एक्वस सॉल्यूशन में ऑरेंज या ब्राउन कलर का होता है। ओके, देन name the type of reaction that occurs when MbR2 reacts with chlorine gas। सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जी, तो हम इस रिएक्शन को देख सकते हैं कि इन एक्चुअली क्या हो रहा है, ब्रोमाइड आयन को एक्वस सॉल्यूशन में से क्लोरीन डिस्प्लेस कर रहा है, तो हम इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये टाइप भी क्लियर है सबको? यस सर। जी sir. ओके, अगर किसी को कोई डाउट हो या कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या फर्क होता है? कोई फर्क नहीं होता, सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, मगर नॉर्मली वैसे हम सब्स्टिट्यूशन की टर्म जो है ऑर्गेनिक में यूज कर रहे होते हैं, बट इट डजंट हैव एनी डिफरेंस, यू कैन आल्सो कॉल्ड इट सब्स्टिट्यूशन। और फर्दर अगर देखा जाए तो इसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट के अलावा भी अगर आप देखें तो ब्रोमाइड पे यहाँ पे -1 चार्ज है और 0 में कन्वर्ट हो रहा है, और क्लोरीन पे यहाँ पे 0 पे चार्ज है जो कि -1 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ब्रोमाइड Br नेगेटिव से 0 हो रहा है, which means oxidation number increase हो रहा है, so bromide ion is undergoing oxidation and chlorine is changing from 0 to its oxidation number is changing from 0 to -1, which means oxidation number is decreasing, so it is undergoing reduction, so we can also call it redox। तो आप इसकी जगह substitution लिखें तो भी सही कंसिडर किया जाएगा, और अगर आप इसकी जगह redox भी मेंशन करेंगे तो it is also a correct answer। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? यस सर। Okay, then compound Y is pure insoluble solid which contains halide ions। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने देखें कंपाउंड Y के बारे में बताया कि insoluble solid है and it have a halide ion। halide ion means any group 7 elements anion। normally it can be a fluoride, chloride, bromide और iodide, इनमें से कोई भी हो सकता है। insoluble solid है यानी कि इसका एक्वस सॉल्यूशन नहीं फॉर्म होगा। ये बात भी क्लियर है सबको? Yes. सर ओके, a single reagent is added directly to compound Y to determine the halide ion present। identify the reagent added, state the observation you would confirm that Y contains bromide ion। जी, कोई मुझे बता सकता है कि अगर आपके पास सॉलिड में जो है हैलाइड आयन का सर कंपाउंड वी प्रेजेंट? कैन ऐड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। वेरी गुड। देखें, जब भी हम सिल्वर नाइट्रेट या एक्वस अमोनिया ऐड करते हैं
ठीक है, either we add aqueous silver nitrate and aqueous ammonia. So we can actually test the identity of halide ion that is aqueous. ठीक है, एक्वस हैलाइड आयन की आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए हम सिल्वर नाइट्रेट और एक्वस अमोनिया यूज करते हैं. बट अगर हैलाइड आयन सॉलिड कंपाउंड में प्रेजेंट है जो कि वाटर इनसॉल्युबल है, सो टू टेस्ट दैट सॉलिड हैलाइड आयंस वी यूज सल्फ्यूरिक एसिड. जी, ये क्लियर है बात सबको? और Yes, sir. कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे. So we will use concentrated sulfuric acid. Okay. तो अगर हम concentrated sulfuric acid डालते हैं तो इन एक्चुअली देखें रिएक्शन क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल, स्टिल वी डोंट नो कि वो कौन सा मेटल है. ठीक है, हम उसको लेट्स अज्यूम कंसिडर कर लेते हैं that it is MBr. So in the first case, HBr will form along with MHSO4. ठीक है. अच्छा, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऐसे मेटल के लिए मैंने भी आपको लिख के दिखाई है जिस मेटल पे क्या चार्ज हो, +1 हो. तो आप ये प्रोडक्ट भी बना सकते हैं और उसकी जगह आप HBr प्लस M2SO4 भी बना सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में ये रिएक्शन होता है और सेकेंड स्टेज में जो HBr फॉर्म हुआ है वो फर्दर सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है और इस रिएक्शन के रिजल्ट में we will get a bromine gas along with sulfur dioxide and water. तो अब देखें ब्रोमीन गैस फॉर्म हो रही है. ठीक है, तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, ब्रोमीन का कलर होता है ब्राउन और रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई हो जाता है और ब्रोमीन एज अ लिक्विड फॉर्म नहीं होता है, एज अ गैस फॉर्म होता है. सो द ऑब्जर्वेशन वी विल राइट ओवर हियर इज ब्राउन वेपर्स और ब्राउन फ्यूम्स. जी, ये क्लियर है सबको? जी सर. Yes, sir. Okay. Now, separate 1 gram samples of 3 different magnesium salts are tested in order to identify the anion present in each sample. Explain how the action of heat is used to identify which sample is magnesium carbonate, which sample is magnesium nitrate, and which sample is magnesium oxide. सर मैग्नीशियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की वो होगी फॉर्म. तो इसका मतलब फिजिंग होगी हमारे पास, या एफरवेसेंस लिख सकते हैं. नहीं, और फिजिंग अगर नहीं होगी. फिजिंग क्या होती है? अच्छा, जब दो रिएक्टेंट वो करते हैं नहीं, रिएक्ट. fizzing is basically a formation of a gas in a solution. Okay, ओके. and they are asking here to see the action of heat on these compounds, which means these all are solid. यस सर. ठीक है, ये बात सबको क्लियर है? और सबका हमने मास कितना यूज किया है? 1 ग्राम. 1 ग्राम यूज किया है. तो अगर मैं आप लोगों को रिकॉल करवाऊं तो देखें, So decomposition reaction. yes, decomposition reactions, very good. So magnesium carbonate on heating converts into magnesium oxide
and carbon dioxide, and if I heat magnesium nitrate, it will also form magnesium oxide along with 2 nitrogen. moles of nitrogen dioxide and half mole of oxygen gas. So these are gases, okay? And if I heat magnesium oxide, there will be no change. मैग्नीशियम ऑक्साइड फर्दर डिकम्पोज नहीं होता। यहाँ पे अगर आपने जनरल इक्वेशन लिखनी है तो चलो मैं इस पेपर के एंड में आप लोगों को लिखवा दूंगा। तो इट मीन्स कि हम ये बात एक कह सकते हैं कि ऑन हीटिंग द मास of magnesium carbonate and magnesium nitrate decreases And sir, brown fumes will be observed. due to on heating the mass of magnesium carbonate and magnesium nitrate decreases due to the formation of gases। ठीक है। अच्छा, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है उसके हमेशा ब्राउन फ्यूम्स मिलते हैं। ठीक है, तो 3 मार्क्स हैं तो आपका 1 मार्क यहाँ पे कवर होगा। दूसरे मार्क के लिए आप अब जब दोनों का मास डिक्रीज हो रहा है तो दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम नाइट्रेट प्रोड्यूसेस nitrogen dioxide gas, so brown fumes are observed, और थर्ड पॉइंट हम ये लिख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड does not change on heating or does not decompose on heating. So these 3 marks for the 3 marks, these 3 points. Is this clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Complete the electronic configuration of magnesium cation present in this salt. तो अगर मैग्नीशियम कैटाइन की बात हो रही है ग्रुप 2 में 2+ चार्ज होगा, और अगर आप पीरियोडिक टेबल रेफर करें तो atomic number is 12. It means 12 electrons in magnesium atom. But अगर 2 positive charge है तो कितने electrons हैं? 10 electrons हैं. So the electronic configuration will be 1s2, 2s2, 2p6. And here we covered all the 10 electrons. So that is it. Is this clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay.
A sample of magnesium carbonate is distinguished from a sample of magnesium hydroxide by adding a small amount of each solid to hydrochloric acid. Okay. तो इन दोनों को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. State one similarity and one difference in these two reactions. ठीक है. One similarity आइडेंटिफाई करनी है और one difference आइडेंटिफाई करना है. जी कोई मुझे बता सकता है आंसर? Sir, both of the solids get disappear. Very good, because both are solids. और अगर हम मैग्नीशियम कार्बोनेट सॉलिड हो या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो, मैं यहाँ पे नीचे इक्वेशन लिख के आप, और दोनों को अगर हम HCl के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे सेपरेटली, so HCl is aqueous. In the first case we will get magnesium chloride along with carbon dioxide gas and water, and in the second case again we will get magnesium chloride. Magnesium chloride is a water soluble salt, so it is aqueous, and water. So in both the cases there are solids on the reactant sides, and on the product side there is no solid. So the similarity in these two reactions is that solid dissolves or solid disappear. जी ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. In the case of magnesium carbonate we are getting a gas, and when a magnesium hydroxide is reacting with the hydrochloric acid, no gas is formed, so the difference will be No fizzing observed in magnesium hydroxide case. सही है. या फिर आप लिखेंगे कि fizzing is observed when magnesium carbonate is added to hydrochloric acid. ठीक है. Okay, sir. दोनों में से कोई भी एक आप स्टेटमेंट दे सकते हैं. Fizzing is observed with magnesium carbonate. जी ये क्लियर है सबको? Yes. Yes. Okay. Now question number 2. The extent of the interaction between particles determine whether the substance is solid, liquid or gas at room temperature. ठीक है. The interaction or the attraction between the particles, जो particles के between forces हैं, उनकी strength की बात हो रही है कि उनकी basis पे हम decide कर सकते हैं कि वो substance solid है, liquid है या gas है room temperature पे. Lithium sulfide L2S is a crystalline solid with a melting point of 938 degrees Celsius. It conducts electricity when it is molten. तो देखें तीन चीजें हमें पता चली यहाँ पे. एक स्टेट पता चली सॉलिड है, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट पता चला 938 डिग्री सेल्सियस है, और तीसरा मोल्टन होने पे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है. इट मींस इन तीनों की बेसिस पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं Ionic. कि डेट इज एन आयोनिक सब्सटेंस. ये बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes. Okay. Now give the formula of the particles present in solid lithium sulfide. So if you look in lithium, it's in group 1, so it have a +1 charge. And if you look at sulfur, that is in group 16, which means 6 valence electron, so it will gain 2 electrons for 2 negative charge. So lithium with a +1 charge and sulfur with a 2 negative charge. ये clear है सबको? Yes. Yes, sir. Okay. Explain in terms of structure of the crystalline solid why lithium sulfide has a high melting point. Because, sir, it is a giant ionic structure. Okay. Giant And there structure. It has permanent dipole forces. नहीं, it
नो, डाइपोल फोर्सेस हम कोवेलेंट में यूज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि There are strong यहाँ पे electrostatic force of attraction between positively charged ions. यस, या फिर हम सिर्फ लिख सकते हैं कि देयर आर स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड्स, और ईदर वी कैन राइट देयर आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज आयंस। तो एक तो बात जाइंट स्ट्रक्चर होगा, और दूसरा ये कि स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड। और अगर आप थोड़ा सा एलोबरेटिव फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आप स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड की जगह क्या स्टेटमेंट देंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज आयंस। ये बात क्लियर है सबको? जी सर। Yes. Okay, if anybody have any doubt, kindly ask. Okay, now B part. Carbon monoxide CO is a gas at room temperature and pressure. It contains a coordinate bond. Coordinate bond को हम और क्या बोलते हैं? We also called it dative bond. Explain what is meant by coordinate bond. Sir, when both the electrons come from the same element to form a covalent bond. Okay, not a covalent bond. We can say a type of covalent bond in which one atom share a pair of electron with other atom. ठीक है, जिसमें एक ही एटम, दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहे होते, बल्कि एक ही एटम पूरा पेयर शेयर कर रहा होता है। ये क्लियर है सबको? Yes sir. Yes, sir. Okay, now draw dot and cross diagram to show the arrangement of outer electrons in carbon monoxide. Show the electrons belonging to carbon atom as cross and show the electrons belonging to the oxygen atom as dot. Okay, तो हमें पता है कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? और ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बन नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ये बात क्लियर है सबको? Yes. Okay, now have a look over here. There is a one carbon atom and there is an oxygen atom. Carbon shared its one electron, and as a result, oxygen shared its one electron. Carbon shared its second electron, oxygen also shared its second electron. As in the outermost shell of oxygen, oxygen have a 6 electrons. By sharing 2 of its electron with a carbon, the octet of oxygen is completed, right? अगर अब आप ऑक्सीजन के अराउंड काउंट करें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, बट द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द कार्बन आर स्टिल 6. इज दिस क्लियर? तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, और कार्बन को अभी भी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. सो व्हाट विल हैपन दैट ऑक्सीजन शेयर इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अ कार्बन. ठीक है, जब ये ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा तो उसके रिजल्ट में हम ये पूरा पेयर यहाँ पे शो करेंगे. नाउ इफ यू सी दैट नाउ बोथ द एटम्स हैव अ ऑक्टेट एंड देयर आर, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड्स दिखा के शो करना चाहूँ, सो देयर आर अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड अ वन डेटिव बॉन्ड.
तो जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उन ट्रिपल बॉन्ड में से 2 नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और एक जो है डेटिव बॉन्ड बनता है कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन। ये क्लियर है सबको? जी सर। Yes. अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है या कोई बात समझ में नहीं आई तो प्लीज पूछ लें। Okay. Nitrogen N2 is also a gas at room temperature and pressure. Neither carbon monoxide nor nitrogen is an ideal gas. Okay. State 2 assumptions that are made about the behavior of the particles in ideal gas. तो आइडियल गैस की जब भी बात की जाती है तो एक assumption तो ये होती है कि सर उनकी वॉल्यूम निग्लिजिबल होती है कंपेयर टू द कंटेनर। ओके और दूसरी Sir, 3 the और molecule- दूसरी सर ऑल द कोलिजन्स आर इलास्टिक बिटवीन द पार्टिकल्स। okay and there is a third one as well, the forces of attraction between significant। particles is negligible। ठीक है, एक तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होती हैं बिटवीन द पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल जो है वो कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जो है नेग्लिजिबल कंसीडर किया जाता है और इलास्टिक कोलिजन्स होती हैं। ठीक है, यस सर। negligible volume of particle as compared to the container। और इन दोनों की जगह पे आप इन दोनों में से किसी एक की जगह पे ये भी लिख सकते थे कि इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं। ओके, now explain why nitrogen does not behave as an ideal gas at very high pressures। हाई प्रेशर्स पे नाइट्रोजन आइडियल गैस क्यों नहीं बिहेव करती? कौन आंसर बताएगा? क्योंकि सर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिकम more significant, and secondly volume of gas is not negligible compared to the container because all the gas particles come closer to each other at high pressure। दोबारा बोलें, पहले आपने क्या बात बोली? सर पहले ये बोला कि forces of attraction become significant। ठीक है, और देखें जब second हाई प्रेशर होगा, बिल्कुल सही है, जब हाई प्रेशर होगा तो मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोजर हो जाएंगे और उसकी वजह से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिकम सिग्निफिकेंट। और इनके सिग्निफिकेंट होने से क्या दूसरा इम्पैक्ट आएगा? सर वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो फिर वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगी। दे वोंट बी नेग्लिजिबल एनीमोर। गुड। और जब सारे पार्टिकल्स करीब करीब होंगे तो वो एक दूसरे के दूर नहीं होंगे, जिसकी वजह से उनके बिटवीन इंटरेक्शन डेवलप हो जाएगी और वो फर्दर क्लोजर हो जाएंगे। तो अब कलेक्टिवली जो गैस के मॉलिक्यूल्स का या पार्टिकल्स का वॉल्यूम है वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ये बात सबको क्लियर है? Yes. सर
volume of particles become significant. Okay. Complete the table by naming all type of intermolecular forces in separate sample of nitrogen and carbon monoxide. देखें, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड दो सिमिलर एटम्स के बिटवीन है और कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड दो डिफरेंट एटम्स के बिटवीन है, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड में डायपोल होता है और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कोई डायपोल नहीं होता। तो इसकी वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के बिटवीन होंगी, दोज आर ओनली instantaneous dipole forces, but carbon monoxide के molecules के between instantaneous dipole forces भी होंगी और permanent dipole forces भी होंगी। सर अगर सिर्फ परमानेंट लिख दे तो इशू तो नहीं है? बिल्कुल इशू है, आपको मार्क नहीं मिलेगा क्योंकि आप ये स्टेटमेंट पढ़ें, कंप्लीट द टेबल बाय नेमिंग ऑल द टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के एक मॉलिक्यूल उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उन सबके नेम देने। तो यहाँ पे आप इंस्टेंटेनियस डायपोल फोर्सेस भी मेंशन करेंगे और उसके बाद आप परमानेंट डायपोल forces भी mention करेंगे। Yes, is this clear to everyone? जी सर। अगर किसी को कोई जी सर एक्सप्लेन कर दिए इंस्टेंटेनियस डायपोल और परमानेंट डायपोल में क्या डिफरेंस है और ये क्या होता है? अच्छा, ये वाली बात समझ में आई कि यहाँ पे डायपोल होगा मॉलिक्यूल में और यहाँ पे कोई डायपोल नहीं होगा मॉलिक्यूल में। यस। ओके, अब देखें, अगर दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोजर आते हैं तो उस क्लोजर आने की वजह से इन दोनों मॉलिक्यूल्स में डायपोल डेवलप होगा ड्यू टू द रिपल्जन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। बट जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे तो इनका डायपोल खत्म हो जाएगा, डेट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डायपोल। ठीक है? यस। सर ये इंडक्शन की वजह से होता है? हाँ, हम इसे इंड्यूस डायपोल भी बिल्कुल इंड्यूस हो रहा है और इसी वजह से हम इसको इंस्टेंटेनियस डायपोल फोर्सेस के अलावा जो है इंड्यूस डायपोल फोर्सेस भी कहते हैं और टेम्पररी डायपोल फोर्सेस भी कहते हैं। ओके सर, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी। ठीक है। अच्छा, Yes. अब जब कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड है वा डायपोल, राइट? Yes. Okay. So if there is another carbon dioxide molecule which is now both are oriented in this way that the partial negative face of one molecule is facing the partial positive face of the other molecule, right? Yes. And there is another possibility that two carbon monoxide molecules come closer in this way. ठीक है, अब जब इस तरह आएंगे तो दोनों के सेम चार्जेस वाले फेस दोनों मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे। Yes. तो ये वाली जो अट्रैक्शन है दैट इज एक्चुअली परमानेंट डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दिस वन इज टेम्पररी डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंस्टेंटेनियस
पोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो दोनों तरह की, जिसमें पोलर मॉलिक्यूल होता है उसमें दोनों तरह की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है जिसमें डाइपोल इंड्यूस हो रहा होता है दो मॉलिक्यूल्स के क्लोजर आने की वजह से, वहां पे सिर्फ टेम्पररी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जी सर। Yes, sir. Okay. Now, suggest why the bond in a molecule of carbon monoxide contain a dipole moment. क्योंकि सर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। Very good. There is a electronegativity difference between the bonded atoms, and oxygen is more electronegative. That's why it is becoming a partial negative charge, and carbon is possessing a partial positive charge. So we can write that oxygen is more electronegative than carbon. Is this clear? Yes. Okay. Now, question number 3. A large excess of 2-bromo-2-methyl propane is added to 0.01 mole of sodium hydroxide, which contains few drop of phenolphthalein indicator. Okay. A stopwatch is started as soon as the substance are mixed. The time taken for the pink color to disappear is recorded. Okay. The experiment is repeated at different temperatures, keeping all concentrations and volumes of the reagents constant. Okay. Explain what is meant by the term rate of reaction. Sir, when forward and backward reaction occur at the same rate. That is wrong. That is a dynamic equilibrium. They are talking about rate of reaction. So time taken for product to appear or a reactant to disappear. Very good. You can write in this way as well. The time taken by the reactant to consumed or disappear, or time taken by the product to appear. But अगर हम और ज़्यादा जनरल वे में बात करें तो हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि it is the change amount of substance with respect to time. ठीक है, तो whether we are observing the reactants or whether we are observing the product, we obviously observe a change in amount. As the reaction proceeds, the amount of the product gets increased and the amount of the reactants gets decreased, right? जी, Yes. definition clear है सबको? जी सर। The graph shows the energy distribution of molecules in a sample of 2-bromo-2-methyl propane at 25 degrees Celsius. EA represents the activation energy for the reaction. Okay. Label the graph to show the proportion of 2-bromo-2-methyl propane molecules which have sufficient energy to react. सर एक्टिवेशन एनर्जी के राइट साइड वाला पूरा ग्राफ। जी, तो हम यहाँ पे ये यूं करके आप लेबल कर दें और यहाँ पे आप लिखते हैं molecules have sufficient energy to react. Is this clear? Yes. Okay. Use the same axis to sketch the distribution of energies of molecules in a sample of 2-bromo-2-methyl propane at 50 degrees Celsius. उन्होंने आपसे 50 डिग्री सेल्सियस पे बनाने को कहा है. When the temperature increases, this distribution curves move to the right. और जब right पे move करेगा
तो उसकी वजह से इस पॉइंट पे हाइट डिक्रीज हो जाएगी और इस पॉइंट पे हाइट इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसी शेप बनेगी। बल्कि 1 मिनट, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा क्योंकि वो उन्होंने एक्सेस पे टच नहीं किया हुआ, तो हम भी इसको यूं थोड़ा सा ऊपर ही बनाएंगे। जी क्लियर है सबको? Yes. ओके। State the effect of an increase in temperature on activation energy for this reaction. जी, No change, no effect. activation energy is only affected by adding catalyst, otherwise no other factor can change the activation energy. जी यहाँ तक क्लियर है? Yes. Now C part. Draw the mechanism to show the reaction of 2-bromo-2-methyl propane with OH, aqueous hydroxide. Show the intermediate formed in this reaction include all charges, partial charges, lone pairs, and curly arrows as appropriate. Okay. तो देखें ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। तो जस्ट एक बात रिकॉल कर लें कि अगर टर्शरी अल्काइल हैलाइड होता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म हो रहा है, जिसको हम SN कहते हैं, तो वहां पे जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो SN1 होता है। और अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो तो जो रिएक्शन मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का फॉलो होता है वो होता है SN2। And if we have a secondary alkyl halide, then we can use SN1 और SN2 अगर एग्जामिनर ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, और अगर उसने कुछ स्पेसिफाई किया हुआ है तो फिर हम उसी के अकॉर्डिंगली SN1 या SN2 में से कोई एक मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। डिफरेंस क्या है? SN1 जब भी फॉलो होता है तो बेसिकली SN1 टू स्टेप मैकेनिज्म है एंड SN2 वन स्टेप मैकेनिज्म है। इन टू स्टेप्स मैकेनिज्म में SN1 में जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो इंटरमीडिएट जो है बेसिकली कार्बोकैटाइन होता है, यानी कि उसमें एक ऐसा कार्बन होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है SN2 में वो बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट होती है, कोई इन एक्चुअल इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता। और उस ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन के 5 बॉन्ड्स होते हैं, जिनमें से 2 बॉन्ड्स को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि साइमल्टेनियसली बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग शो कर रहे होते हैं। जी यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes. ओके, सो दिस इज अ टर्शरी वन। तो SN1 फॉलो होगा, यानी कि पहले इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकैटाइन। दे हैव आस्क्ड यू टू पुट द चार्जेस, सो the bromide is more electronegative, so it have a partial negative charge, and this carbon have a partial positive charge. ठीक है? And then from the bond we make one curly arrow towards bromine, which shows the bond breaking. जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो हमारे पास
We are आज left कितनी with क्लास में? एक मिनट, क्लास कितने बजे? हम क्वेश्चन 3 कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ऑर्गेनिक का और काफी बड़ा है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके, तो इस कार्बन के साथ 3 CH3 ग्रुप्स लगे हुए हैं। ब्रोमाइड रिमूव हो गया है। अच्छा, वैसे हम इसको एंड में शो करें तो ज्यादा अच्छा है। और हाइड्रो ऑक्साइड आयन यहाँ पे जो है ना अटैक करेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब जब बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये कार्बन क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे हम हाइड्रोक्साइड के लोन पेयर दिखाएंगे और उस लोन पेयर से एक करली एरो ड्रॉ करेंगे इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की तरफ। एंड देन वी हैव अ CH3, 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 OH एंड Br नेगेटिव। जी, ये क्लियर है मैकेनिज्म सबको? Yes. Yes. Now they ask name the mechanism for this reaction. So it is nucleophilic substitution. ठीक है, ये क्लियर है सबको? Yes. Okay. The original experiment is repeated at 25 degrees Celsius, 2-chloro-2-methyl propane with 2-chloro-2-methyl propane instead of 2-bromo-2-methyl propane. All the other variables are remain constant. अच्छा, वो कह रहे हैं कि अब क्लोरो अल्कीन जो था हमारा, सॉरी ब्रोमो अल्कीन, ब्रोमीन लगा हुआ था, उसकी जगह हमने क्लोरीन यूज किया है। Predict the effect of using 2-chloro-2-methyl propane compared to 2-bromo-2-methyl propane on the time taken for the pink color to disappear. Explain your answer. जी, Sir, time So- taken for color to disappear would increase because Why? the bond between carbon and chlorine is more stronger than carbon and bromine. bromine. Very good. Down the group atomic radius increase होता है और उस atomic radius के increase होने की वजह से जो आपका bond है वो down the group weaker होता जाता है। तो it means carbon chlorine have a stronger bond and carbon bromine have weaker bond, right? तो हम यहाँ पे लिखेंगे the time taken for the pink color to disappear will increase because carbon chlorine bond is stronger than carbon bromine bond. Is this clear to everyone?
सर सो बेसिकली जितना वीक बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा फास्टेस्ट रिएक्शन होगा. हाँ, क्योंकि वो वीक बॉन्ड है तो जल्दी से ब्रेक हो जाएगा ना, यस. तो इतना रिएक्शन फास्टर होगा. और अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो वो इट विल टेक टाइम टू ओवरकम दूज अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड टू ब्रेक द बॉन्ड. एंड ये ट्रेंड सिर्फ हेलोजेंस के लिए है या हेलोजेंस के लिए है. नॉर्मली ये इस तरह का ट्रेंड हेलोजेंस में पूछा जाएगा या सेम ग्रुप वालों में पूछा जाएगा जहां पे जो है डाउन द ग्रुप बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो. ओके. जी, बाकी सबको भी यहाँ तक क्लियर है? Yes. सर वो Okay, now with Yes. the organic part of this paper and inshallah we will do it tomorrow. और कल हो सकता है कि शायद क्लास थोड़ी सी लेट हो जाए, बट क्लास इंशाल्लाह जरूर होगी. अगर 11 पे स्टार्ट नहीं हुई तो वी विल स्टार्ट एट 11:15 और 11:30. ओके ओके सर. सर वो डेफिनेशन की पीडीएफ. अच्छा, मैं आज देखता हूँ इंशाल्लाह. ओके, टेक केयर एवरीवन. अल्लाह हाफिज. हेलो. जी दोबारा बोलें, आप क्या कह रहे हैं? वो जो हाफ इक्वेशंस होती हैं उनको हाफ इक्वेशंस लिखी हुई होती है और उनको